السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تیراکی کرتے ہوئے دو نوجوان دم توڑ گئے۔ اسماعیل خان پیٹ کے اشرف 16 سالہ اور سنگاریڈی قصبے کے افروز 16 سالہ دونوں ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ وہ منجیرا ڈیم میں تیراکی کرنے گئے تھے اور حادثاتی طور پر ڈوب گئے۔ لواحقین کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ سی ایم ریونت ریڈی دہلی جا رہے۔ سی ایم ریونت ریڈی کانگریس پارٹی کے سپریمو سونیا گاندھی کو 2 جون کو ریاست کا درجہ دینے کی تقریب میں مدعو کر رہے۔ نیز ایسا لگتا ہے کہ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو ان تقریبات میں مدعو کیا جائے گا۔ گاندھی بھون کے ذرائع نے بتایا کہ ریاست کے کئی وزراء بھی دہلی جا سکتے ہیں۔ فلم اداکارہ ہیما نے بنگلور ریو پارٹی معاملے میں سی سی بی حکام کو خط لکھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ وہ وائرل بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے سماعت میں شریک نہیں ہو سکی۔ انہوں نے سی سی بی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ اس کے ساتھ ہی سی سی بی حکام ایک بار پھر ہیما کو نوٹس دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ گرمیوں کی تعطیلات میں نہرو زولوجیکل پارک میں 30,361 سے زیادہ سیاح آئے۔ نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد نے 30,361 سے زیادہ سیاح حاصل کیے ہیں، کیونکہ اتوار کا دن عوام کے لیے موسم کے اختتام پر موسم گرما کی تعطیلات تھی۔ اس سلسلے میں زو پارک انتظامیہ نے اضافی بکنگ کاؤنٹر کھولے اور ویب سائٹ یا موبائل ایپ کے ذریعے بھی آن لائن ٹکٹوں کی بکنگ سسٹم کی اسکریننگ ٹیلی کاسٹ کی۔ پینے کے پانی کے اضافی یونٹس، شیلٹرز، موبائل پیٹرولنگ ٹیمیں، مرکزی دروازے پر اضافی بکنگ کاؤنٹر، بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں اور کھلونا ٹرین اور تمام عملے کے ارکان کو ہموار انتظام کے لیے مخصوص پوائنٹس پر الرٹ کیا گیا تھا۔ راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا ہے کہ حکومت کچھ بھی کہے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے او بی سی کمیشن کی سفارشات پر تحفظات دیے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملتا، لیکن جو لوگ پیچھے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زبان کو لوگ ہلکے سے نہیں لیتے اور پرینکا گاندھی نے جو کہا ہے وہ وزیر اعظم کو مناسب جواب دینا ہے۔ وزیر اعظم مودی کو وزیر اعظم کے عہدے کی وقار کو مجروح کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ جو کہہ رہے وہ بھی ان کی شکست کی وجہ ہوگی۔ پلی چنتالا پروجیکٹ متحدہ آندھرا پردیش میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح تارکین وطن نے کروڑوں روپے سے آباد کاری کے مراکز بھی بنائے ہیں۔ ایک گاؤں میں مٹی نکالنے کے لیے 1.5 لاکھ سوالات، حکام سے جھگڑے اور کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا، اور اس طرح کی باتوں سے کئی شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ محکمہ ریونیو اس بات پر توجہ نہیں دے رہا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی دن دہاڑے 5,000 روپے میں مٹی بیچ رہا۔ اور چنریالہ سیلاب زدہ گاؤں سے پلی چنتالا پروجیکٹ کے تحت دلورو گاؤں تک، اس کے علاوہ تلنگانہ خطے میں بھی ایم ایل سی الیکشن چل رہا، اس لیے عہدیدار چوکس رہیں گے۔ رنگا ریڈی ضلع کانگریس کے صدر چلا نرسمہا ریڈی نے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی 60ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جواہر لال نہرو نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ ہندوستان کو برطانوی راج سے آزاد کرانے کے لیے نہرو نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور انڈین نیشنل کانگریس کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ایم ایل سی جیون ریڈی نے کہا ہے کہ اگر مودی حکومت ملک میں برسر اقتدار آتی ہے تو وہ مسلمانوں کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ مودی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ایس سی ایس ٹی اور بی سی کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، معاشی پسماندگی کا بہانہ بنا کر ریزرویشن لے رہی۔ اس کے ساتھ ایس سی ایس ٹی بی سی کو اس میں ریزرویشن دیا جائے، ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا، وہ امتیازی سلوک کے ساتھ اپنے حقوق کو ختم کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو ان کی برسی کے موقع پر جوبلی ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سی ایم کے مشیر ویم نریندر ریڈی، اے آئی سی سی سیکریٹری سمپت کمار، ایم ایل اے سری ہری، ایم ایل سی پٹنم مہندر ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے۔
शहरी सप्लाई और आपाशी के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाने का इल्जाम लगाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर सनत डी श्रीधर बाबू, एमएलसी टी जीवन रेड्डी और महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन के साथ गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि बीआरएस और बीजेपी दोनों कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए मिलकर काम कर रहे, खासतौर पर बदउनवानी के बेबुनियाद इल्जामात के साथ महकमे सिविल सप्लाईज को निशाना बनाया। उन्होंने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के अनाज की खरीदारी के अमल की कारकर्दगी और शफाफियत पर जोर दिया, ये बताते हुए कि किसानों को अदायगियां 3 से 4 दिनों के अंदर कर दी गई। पिछले बीआरएस इंतजामिया के बरअक्स उन्होंने कहा कि हमने ज्यादा धान खरीदा है और किसानों के खातों में बीआरएस से ज्यादा तेजी से रकम जमा कराई। लाइनमैन बाला राजू की मौत खंबे के ऊपर उस वक्त हो गई जब वो संगारेड्डी जिले के मनीपल्ली मंडल के मल्लिकार्जुनपल्ली में बिजली के खंबे पर चढ़ते हुए जिस वक्त बिजली की सप्लाई अचानक बंद हो गई थी, उसकी मरम्मत कर रहा था, जिसके बाद उसे शदीद झटका लगा और मौके पर उसकी मौत हो गई। गुर्बत में परवान चढ़ने वाले बच्चे अक्सर खुराक, सफाई सुथराई, रिहाइश, सेहत की देखभाल और तालीम से महरूम होते हैं, जिनकी उन्हें जिंदा रहने और फलने फूलने की जरूरत होती है। दुनिया भर में तकरीबन 1 बिलियन बच्चे कसीर जहती गरीब हैं, यानी उनके पास ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक या साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरियात भी नहीं है। इसके नताइज संगीन है। दुनिया भर में गरीब तरीन बच्चों के बचपन में मरने का इम्कान उनके अमीर साथियों की निस्बत दुगना होता है। इंसानी हंगामी हालात के दरमियान परवान चढ़ने वाले बच्चों के लिए महरूमी और अखराज का खतरा बढ़ जाता है और मौसमियाती आफात, तनाज़ात और कोविड-19 के असरात से बढ़ते हुए बहरानों ने सबसे ज्यादा कमजोर बच्चों की तरक्की को रोक दिया है। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में भी 7 में से 1 बच्चा अब भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा। हल्के 4 जीएचएमसी एलबी नगर के एमसाई नगर भार्गव टैक्स इंस्पेक्टर को एसीबी के ओहदेदारों ने मकान का नंबर अलॉट करने और नए तामीरशुदा मकान के प्रॉपर्टी टैक्स के तखमीना के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अहले खम्मम होटलों में खाने से पहले होशियार रहे। फूड कंट्रोलर ने खम्मम के होटलों में चिकन की अशिया जखीरा करते हुए पकड़ लिया है। फूड कंट्रोलर ने गंदे नाले में फेंक दिया है और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने खम्मम बाईपास रोड पर वाक़े रेस्ट इन होटल का मुआयना किया, लेकिन होटल ग्राहकों को कई दिनों तक जखीरा शुदा खाना पेश किया जा रहा और कोकोनट पाउडर और नूडल्स जैसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में भी मिलावट होती है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने मालिक को मुतनबा करने के बाद नहर में जखीरा किए गए कई चिकन कबाब तले हुए होटल पर कब्जा करते हुए तल्फ कर दिया। मोहम्मद अमीन डार कौमी सदर अक़लियती मोर्चा मोदी मिशन तेलंगाना मोदी मिशन के इंचार्ज खानदान के रुकन ऑल इंडिया बीजेपी और जम्मू कश्मीर के सदर ने श्रीनगर में मीडिया वालों से बातचीत की। मैंने अब अहद किया है, मैं अपने जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए काम करूंगा। जो यूथ जिनके लिए मैं अपनी जान भी दूंगा, उस अपने यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर यूथ के लिए। और जो इस वक्त महंगाई का टाइम है, आप देखो बाज़ारों में कोई चेकिंग नहीं होती है। आप देखो सब्ज़ी कितनी महंगी है और 80 रुपया 90 रुपया में साग का 1 kg मिलता है, 60 रुपया 70 रुपया टमाटर मिलते हैं, 40-50 रुपया प्याज मिलते हैं। वो हद से ज़्यादा महंगाई इस वक्त चल रही है। मैं समझता हूँ, मैं जो हमारे वर्कर्स जो है तकरीबन 10,000 या 15,000 जो इस वक्त हमारे वर्कर है, हम एक दिन करेंगे, हम पैदल मार्च करेंगे इस पर जो यहाँ लाल चौक से पूरे हजरत बल एरिया तक मैं पैदल मार्च करूँगा अपने लोगों समेत। इस महंगाई के बारे में, महंगाई के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँगा, मैं धरना दूँगा। कुछ दिनों के बाद यहाँ सक्रिय चालू हो जाएंगे। हम अपने सारे नौजवान जो मेरे यूथ है, हम यहाँ से जाएंगे, हम धरना पर बैठेंगे, हम बोलेंगे बिजली फीस क्यों ज़्यादा आता है, क्या मसला है, लोग क्यों परेशान हुए हैं। उसके बाद चावल का मसला है, चावल पहले 11 kg देते हैं, आज 3 से 4 kg देते हैं। क्या कौन सा बराबरी आते हैं उस चावल में। इन मसाइलों पर
मैं धरना दूंगा सेक्रेटरीट के गेट के सामने, मैं धरना पर बैठूंगा। अपने 5-10 हज़ार वर्कर है हमारे, हम पूरे धरना करेंगे इस पर। जब तक हमारे गवर्नर साहब इसका फैसला नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ से खड़ा नहीं हो जाएंगे। और उसके अलावा जो इस वक्त यहाँ जो रोड्स जो है पूरे श्रीनगर में हैं, खोद कर रोड्स है, मैं गुजारिश करता हूँ, अपने गवर्नर साहब को गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके ये रोड जल्दी से जल्दी फिट करे। यहाँ भटपोरा से नागबल तक जो आलस्टिंग रोड चल रहा है, इसका बहुत से खड़े हो गए हैं। बाकुरा में हमारे एरिया जो यहाँ बाकुरा एरिया है, वहाँ जब बारिश होता है 3 फुट पानी जमा होता है रोड पर, बहुत परेशानी होती है, स्कूल बच्चों को परेशानी होती है। वहाँ मस्जिद शरीफ है, वहाँ नमाज़ पढ़ने वाले जो है उनको परेशानी होती है। मेहरबानी करके गवर्नर साहब इस पर ध्यान दे और इसको अच्छी तरह ये रोड वोड ठीक करे। बाकी वसलाम। चिचास असली हैदराबादी खाना मासब टैंक में किचन में पाए जाने वाले मसनवी खाने के रंग मौके पर ही ज़ाहिर कर दिए गए। स्टेट लाइसेंस के बजाय रजिस्ट्रेशन के साथ काम करना, सब्जी और नॉन वेज कच्चे और नीम तैयार शुदा खाने को बगैर किसी मुनासिब लेबल और ढकने के एक साथ जखीरा किया गया। कीड़ों के दाखिले से बचने के लिए बावर्ची खाने की खिड़कियों के लिए कोई मुनासिब जाल या रुकावट नहीं, कीड़ों पर काबू पाने के रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और बेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड FBO के साथ दस्तियाब नहीं थे। खम्मम, वरंगल, नलगुंडा और मुश्तरिका अजला के फारिगुल तहसील तलबा के लिए पोलिंग में कोत्तागुड़म MLA, CPI के रियासती सेक्रेटरी कोनानैनी सांबा शिवराव, CPI के जिले सेक्रेटरी SK साबिर पाशा, जिन्होंने बाबू कैंप के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पोलिंग बूथ 271 में अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। कोत्तागुड़म जिले चंचोपल्ली मंडल, इसी तरह कोत्तागुड़म कस्बों में पोलिंग बूथ और सुजाता नगर में पोलिंग पैटर्न की जांच की गई। हैदराबाद में होटल की लिफ्ट गिरने का वाकया पेश आया। कनारा ग्रैंड होटल ज़ेर तफ्तीश है और इतवार को दोपहर 3 बजे कनारा ग्रैंड होटल नागुल जो अलकापुरी एक्स रोड हैदराबाद पर वाक़ है, उसमें लिफ्ट गिरने का वाकया पेश आया। होटल की लिफ्ट 4थी मंजिल से पार्किंग एरिया में गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनकी उम्रें 32 साल के लगभग बताई गई। जख्मियों में वीरा ब्रह्मा, रविशंकर रेड्डी, मणिकांता गुप्ता, मनोहर, शुजात बाबा, कल्याण कुमार और 2 दीगर शामिल हैं, जिन्हें शदीद खून बहा। सूर्यापेट के DSP रवि ने बताया कि सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदर अमादी सोमन्ना रसिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तफसीलात के मुताबिक महकमे सिविल सप्लाईज के एहलकारों की जानिब से तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने ACM के चावल को हुकूमत के हवाले करने के बजाय करोड़ों रुपए के अनाज को मूर्त किया। इस शिकायत के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि अहदेदारों ने अमादी सोमन नरसैया की 3 मिलों में मुआयना किया है। 1 माह कबल हुकाम को पता चला था कि उन मुआयने के दौरान तकरीबन 250 करोड़ रुपए का अनाज गायब हो गया था। हैदराबाद टास्क फोर्स ने जगदीश मार्केट में चोरी शुदा मोबाइल फोन फरोख्त करने में मुलविस ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा है कि मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि उन अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और उन पर PG एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। मजीद बराए जगदीश मार्केट में इन दुकानों की निशानदही करना बहुत जरूरी है जहां ये गैर कानूनी सरगर्मी हो रही थी। నిన్న మన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసు వాళ్ళు ఒక మూటని అరెస్ట్ చేసినారు. ఆ మూట పని ఏంటంటే మన తెలంగాణలో ఫోన్లు దొంగతనం చేయాలి. అదేవిధంగా దొంగతనం చేసిన ఫోన్లకి నా నియోజకవర్గంలో యాబిట్స్ పోలీస్ స్టేషన్ కింద జగదీష్ మార్కెట్ వస్తుంది. ఆ జగదీష్ మార్కెట్కి తీసుకుని వెళ్ళాలి. IMEI నంబర్లు చేంజ్ చేయాలి, ఫోన్లకి అన్లాక్ చేయాలి, మళ్ళా సుదాన్ మన ఆఫ్రికా కంట్రీకి షిప్ నుంచి పంపించాలి. ఈ మొత్తం ఒక మూటని మన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసినారు. ఇంతకుముందు కూడా ఈ 31 మెంబర్స్కి అరెస్ట్ చేసినారు కదా, వాళ్ళపైన ఆల్రెడీ వేరే పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు కూడా ఉన్నాయి.
కానీ ఒక మూట అయితే అరెస్ట్ అయింది. ఇంతకుముందు ఇట్లాంటి ఫోన్లు దొంగతనం ఇన్ని చేసినారు. ఇంకా ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళే డాటా ఇస్తున్నారు, 700 అబోవ్ ఫోన్లు దొంగతనం వీళ్ళు చేసినారు. మా దగ్గర దొరికింది నా ఫోన్లని పోలీసు వాళ్ళే అంటున్నారు. ఇంతకుముందు చాలా దొంగతనం చేసినారని పోలీసు వాళ్ళు అంటున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ ఐడెంటిఫై చేసినారా? ఈ మూఠ ఏదైనా రాజకీయ నేతలు హస్తం ఉందా, సపోర్ట్ ఉందా వీళ్ళకి? అది కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలని నేను పోలీస్ అధికారులకి కోరుతున్నా. అదేవిధంగా ఇప్పుడుది కాదు, ఎక్కడైనా ఫోను దొంగతనం అయితే అది జగదీష్ మార్కెట్కి తీసుకొని వెళ్తారు. అక్కడ IMI నంబర్ చేంజ్ చేస్తారు, మళ్ళా అన్లాక్ చేస్తారు, మళ్ళీ వేరేకి అమ్మేస్తారు. చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇదే దందా అక్కడ నడుస్తుంది. గతంలో కూడా మేము పోలీస్ అధికారులకి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్కి రిక్వెస్ట్ చేసినాం. ఈ జగదీష్ మార్కెట్ ఒక దొంగతనం అడ్డా అయిపోయింది. ఎక్కడైనా ఫోన్లు దొంగతనం చేస్తే వేల ఫోన్లు ఇక్కడ తీసుకొని వస్తారు, నంబర్లు చేంజ్ చేసి అమ్మేస్తారు. దీనికి బంద్ చేయండి, ఈ మార్కెట్ని సీజ్ చేయండి. ఇక్కడ చేస్తున్న వ్యాపారులకి ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరి దొంగతనం ఫోన్లు చేంజ్ చేస్తున్నారు వాడికి PD యాక్ట్ వేయండి అని మేము ఇంతకుముందు కూడా పోలీస్ అధికారులకి డిమాండ్ చేసినాం. కానీ కాలేదు. కనీసం ఇప్పుడైనా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ వచ్చింది, మా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మా ముఖ్యమంత్రి గారికి జగదీష్ మార్కెట్ అట్లాంటి చాలా మార్కెట్లు ఉండొచ్చు, అన్ని మార్కెట్కి బంద్ చేయండి. ఎందుకంటే మన తెలంగాణకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది దీనివల్ల. అందుకోసం ఎవరైనా ఈ ఫోన్ దొంగతనం చేస్తున్నారు అట్లాంటి మూటాని ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాళ్ళపైన PD యాక్ట్ వేయాలని నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా దాదాపు ఈ 2 సంవత్సరాలు శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలు కూడా వేల ఫోన్లు దొంగతనం అయింది. ఈ మూటాకి ఆ శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర వచ్చిన మూటాకి ఏదైనా లింక్ ఉందా? లేదు, ఈ 700 ఫోన్లు వీళ్ళ దగ్గర దొరికినాయి అని అంటున్నారు పోలీసులు. ఆ 700 ఫోన్లు శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలో వచ్చిన భక్తులు వాళ్ళు కూడా ఫోన్ ఉందా? అది కూడా పోలీసులు బయట పెట్టాలని నేను పోలీస్ అధికారులకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను.